وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، مداحان رسول کریم، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، یہ عظیم الشان اجلاس جسے آپ سب نے بڑی دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ منعقد کیا ہے، جشن خواجہ غریب نواز اور تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے۔ میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ رب تعالی نے آپ سب کو یہ سعادت بخشی کہ عالم اسلام کی نہایت برگزیدہ اور بابرکت شخصیت کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے اور قوم کے بیچ تعلیمی بیداری لانے کے لیے آپ نے اس بزم کو سجایا۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ سب نے علماء کرام کے نورانی بیانات سے اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا، شعراء کی نعتیں سنی، خصوصاً میرے بہت ہی قریب عزیز گرامی قدر محترم اسد اقبال صاحب سے آپ نے بہت دیر تک نعتیں سن کر کے خود کو محظوظ کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ اسٹیج ارباب علم سے منور ہے۔ جماعت اہل سنت پر جس خانوادے کا بہت احسان ہے، جسے ہم خانوادہ امجدیہ کہتے ہیں، اس خانوادے کے لخت جگر محب گرامی مرتبت مفتی وفاء المصطفیٰ صاحب، جو نبیر صدر الشریعہ ہیں، آپ کے علاوہ
بہت سارے جلیل القدر علماء ائمہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں. ان حضرات کی موجودگی میں میں تھوڑی دیر آپ سے کچھ عرض و معروض کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل الکرام اجمعین. حضرات، سردی کا موسم ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے، لیکن جس جگہ آپ ہیں میں بھی وہیں ہوں. ہمیں دعویٰ نہیں تنہا نباہی دوستی میں نے، ہمیں دعویٰ نہیں تنہا نباہی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے. دونوں حضرات ایک ہی پنڈال کے تحت ہیں، ایک ہی جگہ ہیں. سردی کے اس موسم میں جس وقت آپ یہاں ہیں، علماء بھی آپ کے ساتھ ہیں. تھوڑی دیر یوں ہی سنجیدہ ماحول بنا کر تشریف رکھیں. دیکھیے، اس دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. جان، مال، عزت، آبرو، شہرت، اولاد، پراپرٹی، اقتدار، رب تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دنیا کی ہر قوم کو دے رکھی ہیں. دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس حسن نہ ہو، جس کے پاس اقتدار نہ ہو. اور یہ سب اللہ ہی کا عطیہ ہے، خدا ہی نے یہ ساری نعمتیں بخشی ہیں. قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو کچھ تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں سب خدا کی طرف سے. اللہ نے جان آپ کو دیا، تو جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ نے جان عطا فرمائی. آپ کو حسن دیا، تو جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے حسن دیا. بلکہ ڈاکٹر اقبال نے غالباً کچھ دیکھ کر کے شکوہ کر دیا تھا، خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور. اگرچہ اسے یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ صبر نہیں کر سکا، شکوہ کر بیٹھا. عرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال آپ کو جتنا دیا اس سے زیادہ دوسری قوموں کو بخشا ہے. جتنا مال اللہ نے آپ کو دیا اس سے زیادہ دوسری قوموں کو بخشا ہے. بلکہ مال پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब हक पर हम हैं, खुदा को हम मानते हैं, तौहीद हमारा अकीदा है, अकीदे रिसालत को हम तस्लीम करते हैं, सच्चे मजहब के पैरोकार हम हैं, तो क्या वजह है कि बड़ी बड़ी मार्केटों पर गैरों का कब्जा? क्या सबब है शानदार सवारियां उनके कब्जे में? ये सहाबा ने हुजूर से सवाल किया। मक्के में और मक्के के अलावा उस दौर में जिस शहर के अंदर मार्केट लगती थी, सारी मार्केटों पर कब्जा गैरों का था। उस जमाने की उम्दा सवारियों में शानदार घोड़े, बेहतरीन किस्म के ऊंट, ये आला सवारियां तस्लीम की जाती थी। ज्यादातर ये सवारियां गैरों के पास थी। इन हालात को देख करके सहाबा ने हुजूर से अर्ज की, जब हक पर हम हैं तो ये चीजें गैरों के पास क्यों हैं? अल्लाह ही सब देता है, तो जो मानता है उसे कम क्यों दे रहा है? जो इनकार करते हैं उनके पास ज्यादा क्यों है? मार्केटों पर उनका कब्जा, उम्दा सवारियां उनके पास हैं। ये सवाल 1400 साल पहले का है और सवाल करने वाले सहाबा हैं और जवाब इसका रब्बे कायनात दे रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हमारा और आपका जवाब गलत हो सकता है, हमारे और आपके जवाब में गलती हो सकती है, मगर खुदा जो जवाब दे रहा है, कयामत आ जाएगी मगर कोई उस जवाब को गलत साबित नहीं कर सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, खुदा की कलिमात में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। जमीन फट सकती है, बल्कि एक दिन फटेगी। आसमान फट सकता है, बल्कि एक दिन फट कर रहेगा। समंदर का धारा बदल सकता है, मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 14 सदियां गुजर गईं, बदलने की कोशिश करने वाले खुद बदल गए। न जाने कितने जल भुनकर खत्म हो गए। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कुरान का जवाब कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। सवाल किया सहाबे किराम ने कि क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है। कुरान की चमकती हुई आयते करीमा सहाबे किराम के सामने आती है। कुरान इरशाद फरमाता है, ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीन कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील मताउन क़लील। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीन कफ़रू फिल बिलाद। अहले कुफ्र का शहरों में शानदार सवारियों पर दनदनाते हुए फिरना, उनका दौड़ना, उनका चहल पहल करना, शानदार सवारियों से उनका सफर करना, ला यगुर्रन्नका, हरगिज तुम्हें धोखे में न डाले, इससे फरेब में मत आना, इससे तुम अपने दिल में मायूसी मत लाना। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीन कफ़रू फिल बिलाद। अहले कुफ्र का शहरों में आना और जाना, उम्दा सवारियों से उनका चलना, ये तुम्हें हरगिज धोखे में न डाले। मताउन कलील, मताउन कलील, ये बहुत थोड़ी पूंजी है, ये बहुत थोड़ी पूंजी है, फिर इन सब का ठिकाना जहन्नम है। और तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें क्या मिलेगा?
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم اگر صحیح سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے، ایمان کے تحفظ کے ساتھ گئے، تو تمہارے لیے جنت کی بہاریں ہیں، اور اس میں ہوگا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کہو گے وہ سب ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی کی جائے گی۔ یہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ نے دولت آپ کو بھی دی، دولت غیروں کو بھی دی، حسن آپ کو بھی دیا، حسن غیروں کو بھی دیا، عزت آپ کو بھی دی، عزت غیروں کو بھی دیا۔ غرضے کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے دنیا کے ہر انسان کو عطا فرمائی، لیکن مجھے بتائیے، آپ جواب دیجئے کہ ایمان کیا اللہ نے سب کو عطا کیا ہے؟ کیا دولت ایمان اللہ نے سب کو بخشی ہے؟ نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 8 ارب آبادی انسانوں کی پائی جاتی ہے، 8 ارب آبادی انسانوں کی ہے دنیا بھر میں، اور اس 8 ارب آبادی میں 6 ارب آبادی ان لوگوں کی ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارب انسان ایسے ہیں اس وقت دنیا میں جو رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ 2 ارب کم و بیش ایسے انسان ہیں جن کو کلمہ پڑھنے کی سعادت ملی ہوئی ہے اور ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ 6 ارب وہ ہیں جو 2 ارب کے خاتمے کے لیے ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں۔ یہ 6 ارب وہ ہیں جو 2 ارب کو نگلنے کے لیے ہمیشہ تدبیریں بناتے ہیں۔ یہ 6 ارب وہ ہیں جو 2 ارب کو دیکھ کر کے جلتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے حضور فقیہ ملت استاذ الفقہا مفتی جلال الدین احمد امجدی نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، درمیان گفتگو حضرت نے فرمایا، مولانا یاد رکھیے گا، کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں۔ کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی جلتے ہیں، اور جس کے اندر حسن جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے جلنے والے بھی اتنے ہی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، دیکھ لیجئے اس وقت کلمہ پڑھنے والے بہت مختصر ہیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کی اکثریت ہے۔ اگر وہ ہمارے نبی سے جلتے نہیں تو نبی کا کلمہ پڑھ لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ رب قدیر نے میرے مصطفیٰ کو کائنات میں سب سے زیادہ حسن عطا کیا، اسی لیے انسانوں میں ان سے جلنے والے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر قوم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، مگر نعمت ایمان اللہ نے سب کو نہیں عطا کی ہے۔ یہ نعمت سب کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت بہت ہی اسپیشل لوگوں کے پاس ہے۔ اگر آپ کے شہر کا کوئی نوجوان تعلیم یافتہ منتخب ہو جائے، جس کا آپ اپنی زبان میں یوں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا سلیکشن ہو جائے، سلیکٹ ہو جائے، کیا بن جائے؟ ڈی ایم بن جائے، ایس پی بن جائے، تو اس کا شہرہ پورے علاقے میں ہوتا ہے کہ یہ لڑکا منتخب کر لیا گیا، چن لیا گیا۔ اگر لوگوں کے چنے ہوئے فرد پر قوم ناز کرتی ہے، لوگ ناز کرتے ہیں، آبادی کے لوگ فخر کرتے ہیں، تو آپ اس پر فخر کیجئے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے نہ چنا ہوتا تو مصطفیٰ کا وفادار آپ کو نہیں، آپ انتخاب الہی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب
है। اور جو خدا کا منتخب ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ وفاداری، یہ جانثاری، یہ جذبہ ایمانی رب قدیر نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہم نے نبی کی زیارت نہیں کی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کے کسی گوشے میں اگر ہمارے نبی کی شان میں کوئی غلط جملہ استعمال کرتا ہے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں اگر کوئی ناہنجار ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، جس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے۔ یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے۔ جس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والی یہ مسلمانوں کی نسل اپنے نبی پر قربان ہونے کا ایسا جذبہ رکھتی ہے۔ جس نے دیکھا نہیں ہے جب وہ اس طرح سے قربان ہوتا ہے تو جس نے نظروں سے دیکھا تھا بھلا وہ کیوں نہ اپنے آپ کو قربان کرتے۔ صدیق اکبر نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولائے کائنات نے دیکھا، حیدر کرار نے دیکھا، ابو ذر غفاری نے دیکھا، بلال حبشی نے دیکھا۔ انہوں نے جب دیکھا تو صرف اپنا مال ہی نہیں قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنی دولت بھی قربان کر دی، اپنا وطن بھی قربان کر دیا، اور بابا کے دوہل انہوں نے یہ کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بے سہارا نہ سمجھیں۔ وہ بے سہارا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس غریب نواز ہے؟ دنیا کی ہر قوم کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، حسن ساری قوموں کے پاس ہے، بلکہ کچھ قوموں کے پاس بہت زیادہ ہے، دولت بہت ساری قوموں کے پاس ہے، اقتدار بہت ساری قوموں کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے یہ 4 ویلر جس میں ابھی میں بیٹھ کر کے آیا، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے، ٹھنڈک تو نہیں لگ رہی ہے، بس تھوڑی دیر ایسے ہی برداشت کر لیجئے، میں جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ فرض کر لیجئے کہ ایک محلہ ہے اور اس محلے میں جتنے مکانات بنے ہوئے سب ایک جیسے ہوں، اور سب کے دروازے پر 4 ویلر گاڑی کھڑی ہو، اور ایک گھر کا آدمی لڑکا باہر نکل کر کے موچ پر تاؤ دے کر انگڑائیاں لیتے ہوئے فخر سے اپنی گاڑی کو دیکھتا ہو اور لوگوں کو دیکھتا ہو اور تصور یہ کر رہا ہو کیا گاڑی میرے پاس ہے۔ بغل والا جب سنے گا کہے گا رے بے وقوف یہی گاڑی تو میرے بھی دروازے پہ کھڑی ہے۔ تیسرا کہے گا یہی گاڑی تو میرے بھی دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گاڑی سب کے دروازے پر کھڑی ہو وہ گاڑی فخر کی چیز نہیں ہے، وہ گاڑی تکبر کی چیز نہیں ہے، وہ ناز کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ساری گاڑیوں کے بیچ میں ایک گاڑی 2 ارب کی کھڑی ہو، 2 ارب والی گاڑی ہو، اب اس گھر کا نوجوان اپنی گاڑی کو دیکھ کر کے اگر ناز کرے تو خود محلے والے کہیں گے بھئی اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ ناز کر رہا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ فخر کر رہا ہے۔ یہ مائک ہے، اگر اسی طریقے کا شاندار مائک مارکیٹ میں جتنی دکانوں پہ مائک دیا اور لیا جاتا ہے، اگر ہر دکان پر اسی شاندار طریقے سے مائک ہو اور اس مائک کا مالک
اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے آپ سے نخرے میں بات کرے تو آپ کہیں گے چپ رہو، دوسری دکان پر جاتا ہوں، جو تیرے پاس ہے وہی فلاں کے پاس بھی ہے، کیا گھمنڈ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سب کے پاس ہو وہ گھمنڈ کی نہیں ہوتی ہے، جو چیز سب کے پاس ہو وہ فخر کی نہیں ہوتی ہے، جو چیز سب کے پاس ہو وہ ناز کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولت گھمنڈ کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہ سب کو عطا کیا ہے، اس لیے گھمنڈ کی چیز نہیں ہے، اللہ نے یہ سب کو عطا کیا ہے۔ اقتدار یہ گھمنڈ کی چیز نہیں ہے، اللہ نے دنیا کی ہر قوم کو عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ذرا اور آگے پڑھے لکھے ماحول میں چلیے، اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ڈاکٹر بہت ہیں تو دوسری قوم کہے گی اس پہ کیا فخر کرتے ہو، ہمارے ہر محلے میں 2-4 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر ہونے پہ فخر کرے تو دوسری قوم کے لوگ کہیں گے کیا فخر کرتے ہو، ہمارے محلے میں 10 انجینئر انجینئرنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انجینئر ہر قوم کو اللہ نے دیا، ڈاکٹر ہر قوم میں پیدا کیا، بیرسٹر ہر قوم میں پیدا کیا، اللہ نے ہر قوم کو دولت والا بنایا، مگر پوری دنیا میں اللہ نے اگر غوث اعظم دیا ہے تو ہمیں دیا ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم ہے تو ہم اہل سنت کے پاس ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس خواجہ غریب نواز نہیں ہے، خواجہ غریب نواز اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مستشرق، ایک عیسائی عالم نے ایک موقع پر حالات کا مشاہدہ کیا، جائزہ لیا، اس کے بعد اس نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے پیغمبر نے کتنا شاندار عقیدہ عطا کیا، کتنی بہترین تعلیم دی ہے، کسی موڑ پر ان کے نبی نے ان کو بے سہارا چھوڑا ہی نہیں، ان کے پیغمبر نے ان کو ہر موڑ پر سہارا عطا کیا۔ اور وہ پھر آگے لکھتا ہے کہ ہر ملک میں ان کے پیغمبر نے ایک مضبوط سہارا ان کو دے دیا۔ اور آگے ہندوستان کے حوالے سے تفصیل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہندوستان میں تو ان کے نبی نے بے شمار سہارا دیا، ان سہاروں میں ایک سہارا ان کے خواجہ غریب نواز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر بھی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان بظاہر بے سہارا ہے مگر سب سے مضبوط سہارا انہی کے پاس ہے، اس لیے کہ 800 سال سے جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے دل پر حکومت کرے اس ذات کا نام خواجہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں بٹا کے نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان۔ یوں ہی ایک عیسائی نے یہ بھی کہا تھا، ایک انگریز نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب میں ہندوستان گیا اور میں نے ہندوستان کے حالات کو دیکھا، اس کا جائزہ لیا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر 2 سلطنت ہے، 2 حکومت ہے، 2 حکمراں ہیں، ایک ظاہر میں حکومت کرنے والے اور ایک روحانی طور پر، باطنی طور پر حکومت کرنے والے، ایک زمین کے اوپر حکومت کرنے والے اور ایک زمین کے نیچے حکومت کرنے والے۔ اور نیچے حکومت کرنے والے کا ذکر جب کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہندوستان کے اندر ایک قبر ہے جو ہندوستانیوں کے دل پر حکومت کر رہی ہے، اور وہ کسی اور قبر کا نام نہیں لیا، اس نے نام لیا تو میرے خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذکر آ ہی جاتا ہے، نام اعلیٰ حضرت کا آ ہی جاتا ہے۔ حضور محدث کبیر آقائے نعمت شہزادے صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جو ہمارے مفتی وفاء المصطفیٰ صاحب کے بڑے والد گرامی ہیں، ایک مرتبہ اپنی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ عرس کسی کا ہو، محفل کوئی بھی ہو،
आखिर आला हजरत का नाम क्यों आ जाता है? उस किसी का हो मगर जिक्र रजा क्यों हो जाता है? बात यह है कि जब बुजुर्गों की अजमत पर लोग हमला कर रहे थे, बुजुर्गों की अजमत से खेलने की नापाक कोशिश कर रहे थे, तन्हा इमाम अहमद रजा ने चौमुखी लड़ाई लड़के जितने दुश्मनाने औलियाए किराम थे सबको चैलेंज करते हुए कहा, दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। जब उन्होंने अजमते औलियाए किराम पर नापाक जसारत करते हुए आंख उठाने की कोशिश की, इमाम अहमद रजा ने अपने कलम के जरिया अजमते औलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। औलियाए किराम की रूहें खुश हो गई, उन्होंने रूहानी तवज्जो किया और इमाम अहमद रजा को वो दर्जा मिल गया कि गौस का उर्स हो या ख्वाजा का उर्स हो या मखदूम पाक का उर्स हो, सबकी रूहानियत इमाम अहमद रजा का जिक्र पूरी महफिल में कराई। आला हजरत एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं कि वो कौन सी जगह हैं जहां पर दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, वो कौन से मकामात हैं कि जहां बंदा दुआ करे तो उसकी दुआ को जल्दी कबूल कर लिया जाता है। अभी शायद आपने रिकॉर्डिंग के जरिया ये मेरा बयान कहीं सुन लिया होगा, मगर मैं फिर उसका यादा करता हूं। अभी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 माह कबल की बात है, एक शख्स ने मेरे पास फोन किया। मैं किताब पढ़ा करके अभी खत्म ही किया था कि घंटी बजी, मैंने फोन उठा लिया। उसने कहा मुझे आपसे एक सवाल करना है। हमने कहा क्या सवाल है? उसने कहा कि आप लोग मज़ारों पे क्यों जाते हैं? मैंने कहा आप करते क्या हो? कहा मैं जॉब में हूं। मैंने कहा के रहने वाले हो? उसने कहा मैं राजस्थान से ताल्लुक रखता हूं। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुमने कितना पढ़ा है? उसने कहा मैंने हाई स्कूल किया है। मैंने कहा ठीक है, फिर से सवाल करो। उसने कहा कि आप लोग मज़ारात क्यों जाते हैं, औलिया के यहाँ क्यों जाते हैं? मैंने उससे कहा अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, ये औलिया किराम अल्लाह के महबूब हैं, इनके यहाँ जाते हैं इसलिए कि उनकी बारगाह में पहुंचकर उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से हम दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकत से हमारी दुआओं को जल्दी कबूल कर लेता है। वो नेक है, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार हैं, वो अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार हैं, मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार हैं। अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल होती हैं। हम वहां पहुंचते हैं ताकि उनके फैज़ो बरकात भी ले और उनके तवस्सुल से रब की बारगाह में दुआ करें तो रब हमारी दुआ को कबूल कर ले। हम इसलिए उनके दरबार में जाते हैं। इस पर एक बात और अचानक मुझे याद आ गई, इसको भी आपने सुना होगा कि जब नवाब रामपुर की बारगाह में हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ एक मौके पर तशरीफ ले गए, ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे किछोचा शरीफ के, तो नवाब रामपुर ने इनको खुद अपने हाथ से, उस जमाने में जबकि लाइट का इंतजाम नहीं था, करंट का सिस्टम नहीं था, अपने हाथों से उसने खुद पंखा झला था। वो पंखा झल रहा था और हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह तख्त पे तशरीफ फरमा थे। मजमा इसी सामने बैठा हुआ था। एक शख्स ने कहा मुझे एक सवाल करना है। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा हुजूर ये बताएं कि बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है? हजरत ने इरशाद फरमाया ये भी कोई पूछने की बात है? सुनो, बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ रब कबूल करता है, खुदा कबूल करता है, अल्लाह कबूल करता है। और कौन कबूल करता है? कहा हजरत एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है, उसका भी जवाब दे दिए। हजरत ने फरमाया वो क्या सवाल है? उसने कहा कि जब खुदा ही दुआ कबूल करता है तो ये भी बता दीजिए कि कहां से उससे दुआ की जाए, कहां बैठकर उसे पुकारा जाए, कहां से उसकी बारगाह में अर्ज़ो मारूज पेश की जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले। कोई जगह तो बताइए। हजरत ने फरमाया वो जगह से पाक है, उसको कहीं से भी पुकारो, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। कहीं से उसे पुकारो, अगर वो तुम्हारी दुआ को कबूल करना चाहे तो वो कबूल कर लेगा।
कहा ठीक है, ये भी समझ में बात आ गई, लेकिन अब एक तीसरा सवाल और रह गया है, उसका भी जवाब अता फरमा दीजिए। हजरत ने फरमाया वो तीसरा सवाल क्या है? अब वो कहता क्या है? जब खुदा ही दुआ कबूल करता है और जहां से उसको पुकारा जाए वो अगर चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, तो हुजूर ये बताइए आखिर सुन्नी उलमा अपने अवाम को मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? अगर कोई जाकर के इनसे कहता है हजरत मेरी औलाद नहीं है, कोई दुआ कर दीजिए ताकि रब औलाद दे दे, तो आप ही लोग कहते हैं अजमेर चले जाओ। और अगर किसी को भूत लग जाए, किसी को शैतान लग जाए, किसी को आसेब लग जाए और आपके पास पहुंचता है तो आप कहते हैं कि छौछा चले जाओ। जब रब दुआ कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए वो अगर चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, तो आप मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ? क्यों कहते हैं सैयदना सालार मसूद काजी की बारगाह में चले जाओ? क्यों कहते हैं कि मखदूम की बारगाह में चले जाओ? जब दुआ रब ही कबूल करता है तो मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? हजरत ने फरमाया ठीक है, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन अब जरा करीब आ जाओ। अब वो करीब आया, हजरत ने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत ने फरमाया अपनी जगह पे चले जाओ। अब फिर वो अपनी जगह पर चला गया। हजरत ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उसे कोई जवाब नहीं दिया और नवाबे रामपुर पीछे से पंखा झल रहे हैं। थोड़ा वक्त गुजरा, हजरत ने फरमाया साहिल किधर है जिसने सवाल किया था? उसने कहा हुजूर मैं बैठा हूँ। कहा करीब आ जाओ। उसने कहा ठीक है हुजूर, फिर आता हूँ। आके बैठ गया। मैंने इख्तिसार के साथ वाकया बयान किया। आके बैठ गया। हजरत ने उससे पूछा ये बताओ कि जब तुम वहां बैठे थे तब तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी या मेरे करीब आए तब तुम्हें पंखे की हवा मिलने लगी है? उसने कहा हुजूर मैं दूर था तो मुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी और मैं करीब आया तो मुझे पंखे की हवा मिलने लगी है। हजरत ने उसका जवाब सुना तो नवाबे रामपुर से पूछ लिया, नवाब साहब ये बताइए आप ये पंखे की हवा मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखा मुझे झल रहे हैं कि इसे झल रहे हैं? नवाबे रामपुर ने कहा हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने मेरे खुद यहाँ नौकर चाकर हैं जो मुझे पंखा झलते हैं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे हवा के लिए पंखे झलूं? जब नवाबे रामपुर ने ये जवाब दिया, हजरत ने उससे फरमाया सुन, तू इस काबिल नहीं था कि तू नवाब के पंखे की हवा खाता, लेकिन मेरे करीब आ गया तो देख तुझे भी नवाब के पंखे की हवा मिल गई। हम ये जानते हैं हवा में हमारे अवाम की जबान में वो तासीर नहीं है, इनके कैरेक्टर में वो पाकीज़गी नहीं है, इनकी रफ्तार और गुफ्तार में वो तकद्दुस नहीं है, इनकी जबान इस काबिल नहीं है कि फौरन इनकी दुआ कबूल कर ली जाए और रहमतें इनके ऊपर उतर पड़े। मगर ख्वाजा का आस्ताना वो है जहां पर हरदम रहमतों की बारिश होती है। हम इसलिए इनको भेजते हैं कि रब जो वहां अपनी रहमतों की बारिश कर रहा है ये पहुंच जाए और उस बारिश के छींटे से इनको भी हिस्सा आला हजरत ने एक मकाम पर तहरीर फरमाया है कि हिंदुस्तान में वो कौन सी जगह है जहां बंदों की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। अगर आला हजरत ने ये न लिखा होता तो जितने उलमा स्टेज पर मौजूद हैं इनको वो जगह मुतय्यन करने में बड़ी दुश्वारी होती, ये नहीं मुतय्यन कर पाते। इसी एक बात की क्या तखसीस है, हजारों ऐसी बातें हैं कि अगर इमाम अहमद रजा ने उसको क्लियर न किया होता तो आज तामक तोय्या लोग मारते रहते, वो समझ ही नहीं पाते कि किधर जाएं। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है, उनका हम पर फजले करीम है कि 1000 किताबें लिख करके उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा दी है। उन्होंने 1000 किताब लिख करके हर दुश्मन के सवाल का जवाब दे दिया है और तहदीसे नेमत के तौर पर खुद फरमा दिया, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, ये संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं और पूरी दुनिया एतराफ अजमत में कहती नजर आती है, डाल दी कल्ब में
عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس نے ہندوستان میں امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، چند علماء کے ساتھ میں بھی سفر میں تھا اور گفتگو علم کے حوالے سے چل رہی تھی، عقیدے کے حوالے سے چل رہی تھی، حالات حاضرہ پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ میں نے ان میں بیٹھے ہوئے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ علماء نے فرمایا وہ کیا؟ ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ علماء موجود، ہر زمانے میں موجود رہے، عرب ممالک میں بھی علماء ہر دور میں رہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اور بہت سارے ممالک میں بد مذہبیت غالب آ گئی، ایران پورا کا پورا ملک رافضی ہو گیا، سعودیہ اور دیگر عرب کے بہت سارے ملک یا تو بدعقیدہ وہابیت کی گود میں چلے گئے، یا رافضی ہو گئے، یا بے دین اور دہریہ ہو گئے، مگر ہندوستان میں 1000 کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکے۔ بدعقیدوں نے بڑی کوشش کی، مگر اس کے باوجود ہندوستانیوں کا ایمان آج بھی محفوظ ہے، اور اس گئے گزرے وقت میں بھی الحمدللہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اپنے نبی کی وفاداری میں اپنی جان اپنا مال قربان کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دیگر ممالک میں بھی علماء موجود تھے، مگر عوام کا ایمان برباد ہو گیا، اور ہندوستان میں آج بھی الحمدللہ سنیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ ہم نے کہا اس جواب سے ہم کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ ایک صاحب بیٹھے تھے صاحب دل، انہوں نے کہا میں جواب دوں؟ میں نے کہا بالکل ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ اور دیگر ملکوں میں احمد رضا نہیں پیدا ہوا، رب نے ہندوستان میں احمد رضا پیدا کیا، اس کی برکت سے ہمارا ایمان۔ اب ذرا اس کو بس تھوڑی تشریح کے ساتھ آپ سن لیجئے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے بھائیوں، آپ اپنے پیسے کی حفاظت کیجئے گا، دیکھیے کوئی پاکٹ مار نہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہو، اس لیے اپنے مال کی آپ حفاظت کیجئے گا۔ جیب میں اگر پیسہ ہوگا تو کہیں کوئی پاکٹ مار آپ کی پاکٹ مار کر کے آپ کا پیسہ آپ سے چھین نہ لے اور آپ کو خبر نہ ہو، تو آپ کہیں گے کہ حضرت نے ہم کو ایک نصیحت کی ہے، حضرت نے ایک اچھی بات بتائی ہے۔ ہم نے مجمع سے کہا کہ آپ لوگ کہیں بھی رہیے مگر اپنے مال کی، اپنی پاکٹ کی حفاظت کرتے رہیے، اس پر نظر رکھیے، کہیں کوئی پاکٹ مار آپ کی پاکٹ نہ مار لے جائے۔ تو بتائیے کیا ایسی صورت میں آپ یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کی پاکٹ محفوظ رہے گی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی پاکٹ سے کوئی شخص آپ کا مال چرا کر کے نہیں لے جا سکتا ہے؟ آپ گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں، نہ آپ کو اتنا اطمینان ہوگا، اس لیے کہ آپ کہیں گے حضرت نے یہ کہا ہے کہ اپنی پاکٹ کی حفاظت کیجئے، تو واقعی پاکٹ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ایک کامن بات کہہ دیا، ایک جنرل بات کہہ دی کہ پاکٹ ماروں سے آپ محفوظ رہیے گا، ورنہ آپ کی پاکٹ کٹ جائے گی۔ آپ کہیں گے حضرت نے بہت اچھی بات کہی، لیکن اگر میں کہہ دوں یہ دیکھیے یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نام یہ ہے، یہ دیکھیے ٹوپی ایسے لگائے ہوئے ہے، دیکھیے کرتا ایسا پہنے ہوئے ہے، دیکھیے یہ ہاتھ میں تسبیح یہ اس رنگ کی لیے ہوئے ہے، یہ پاکٹ مار ہے، اس سے بچے رہیے گا۔ بتائیے اب آپ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ اب آپ کی پاکٹ کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو ہی آپ اس کو دیکھیں گے کہیں گے ارے یہ تو پاکٹ مار ہے، اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ہم نے جب ایک جنرل بات کہی تھی تو اس سے آپ بچیں، یہ کوئی ضروری نہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے بغل ہی میں بیٹھا ہو اور آپ کی پاکٹ کاٹ لے جائے، آپ کا پیسہ لے کے چلا جائے، آپ کو خبر نہ ہو۔
लेकिन जब हम निशानदेही कर देंगे, नामजद कर देंगे और बता देंगे देखो ये है, इसका ये नाम है, इसका ये हुलिया है, इसका ये लिबास है, और देखो ये छुरी है, वो देखो उसके हाथ में, जरा गौर से देखो, जब हम कह देंगे हर शख्स उससे अलर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए जिगर चाहिए, हर एक के बस की बात नहीं है, इसलिए कि अगर ये कहेगा तो कहने से पहले 25 बार सोचेगा कि कहीं मेरी ही पॉकेट ना मार दे और कहीं अपनी छुरी से मेरी जान ही को ना बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि चौराहे चौराहे मुझे गाली दे, सब कुछ सोचेगा। और फिर जब ये सोच लेगा अरे कौन जाए बुरा बनने के लिए, कौन जाए अपने सर को ओखली में डालने के लिए, तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप चला जाएगा। लेकिन जब जिगर बहुत मजबूत होगा और सोचेगा मुझे गाली दे तो क्या हुआ, गाली से क्या फर्क पड़ेगा, लोगों की पॉकेट तो उससे महफूज हो जाएगी, लोग उससे बचने तो लगेंगे, तो अपना जिगर जब मजबूत कर लेगा तो नाम ले करके भी कह देगा कि फला शख्स ऐसा है, इससे बचो। अब वो जिंदगी भर कहने वाले को गाली देगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, जिंदगी भर वो याद कर करके गालियां देगा, फला ने मेरी रोजी रोटी पे बट्टा लगाया है, फला ने मेरे जेब कतरे होने का ऐलान किया है, जहां जहां जाएगा वो गालियां देगा कि फला ने जेब कतरा मुझे बता करके पूरी कौम में मुझे मेरी पहचान करा दी, इसीलिए तो अब धंधा सही नहीं चल रहा है। मगर ये कहने के लिए जिगर तो चाहिए ही। मैंने जब गौर किया और मैंने तारीख पढ़ी तो इमाम अहमद रजा का जिगर इसमें मुझे बिल्कुल यकता नजर आया, मुनफरिद नजर आया। ये कहना आसान है कि नबी के गुस्ताखों से दूर रहो, नबी की तौहीन करने वालों से दूर रहो, मगर ये कहना बहुत मुश्किल है, ये नबी का गुस्ताख है, इससे दूर रहो, ये फला है, इससे बचो। इसके लिए जिगर चाहिए और ये जिगर रब ने इमाम अहमद रजा आप इसको समझिए। आला हजरत को आज बहुत सारे लोग बुरा क्यों कहते हैं? क्या आला हजरत ने उनका पुदीना काटा है क्या? उनका खेत जोता है क्या? नहीं, ना आला हजरत ने उनका पुदीना काटा है, ना आला हजरत ने उनका खेत जोता है। अलबत्ता वो जहरे हलाहल को शरबते रूह अफजा में मिलाकर कौम को पिलाने के लिए जब चले थे तो इमाम अहमद रजा ने जहर और शरबत को अलग अलग करके बताया कि देखो बचना, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा, हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। इमाम अहमद रजा ने ऐसे तमाम गुस्ताखाने रसूल को नाम ले ले करके चौराहे पर ऐसा बेनकाब किया, ऐसा बेनकाब किया कि जिनकी किस्मत में हिदायत थी वो सिराते मुस्तकीम पर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकदीर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी लिखी कि उनकी गुलामी का पट्टा हमारे गले में डाल दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ईमान महफूज है। और आप अल्लाह ने दुनिया की हर कौम को दौलत दी, माल दिया, इक़्तिदार दिया, जाहो रिश्वत दी, सबके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी हो और वही गाड़ी सबके पास हो तो ये फख्र की चीज नहीं है। और अगर एक गाड़ी किसी के पास ऐसी है कि जो पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है, अगर उस घर वाला नाज करे तो ये उसके लिए फख्र की बात है। पूरी दुनिया में न किसी के पास गौसे आजम है, न पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम आजम है, न पूरी दुनिया में किसी के पास हुसैन आजम है, न पूरी दुनिया में किसी के पास शहीद आजम है, न पूरी दुनिया में किसी और के पास हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। रब्बे कदीर ने ये सारी नेमतें हमको अता कर दी। और जरा नीचे आ जाइए, बड़ी इंसाफ की बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम अहमद रजा नहीं है, किसी के पास इमाम अहमद रजा नहीं है। इमाम अहमद रजा अगर किसी के पास है तो रब्बे कदीर ने इमाम अहमद रजा जैसा दानिश्वर, आलिम रब्बानी, मुजद्दिद आजम, कुतुबे ज़माना हम अहले सुन्नत को अता फरमाया। और सच्ची बात ये, और नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाइए, पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसी हस्ती नहीं है कि जो अपने कदमों में सबको जमा कर ले।
पूरी दुनिया जिसकी शैदाई और दीदार की तमन्नाई हो जाए, अल्लाह ने वो हस्ती ताजुशरिया की शक्ल में किसी और को नहीं दी, वो हमें अता फरमाई है। न जाने हजरत के विसाल से लेकर के अब तक आप जरा नजर उठा करके देख लीजिए, न जाने कितने वजीर का इंतकाल हुआ, न जाने कितने मिनिस्टर दुनिया से गए, न जाने कितने बैरिस्टर मर गए, न जाने कितने अहले दौलत मर गए, न जाने कितने उलमा दुनिया से चले गए। मगर बताइए, पूरी दुनिया जिसके कदमों में आ जाए, कोई और हस्ती दिख रही है, कोई और जात दिख रही है? इस 6-7 साल के अंदर दुनिया भर में न जाने कितने हुक्मरान मरे, न जाने कितने वज़रा मरे, न जाने कितने दानिश्वर गए, न जाने कितने उलमा दुनिया से गए, मगर करोड़ों की तादाद में जिसके जनाजे के लिए हाजिर हुए वो तन्हा मेरे ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि रब्बे कदीर ने आपको जो ईमान अता किया, जो दौलत ईमान दी, रसूल पाक की वफादारी की जो नेमत अता की है, और इन बुजुर्गों के फैज़ो बरकत से जो आपको माला माल किया है, ये सबके नसीब में नहीं है, ये सिर्फ सुन्नियों के नसीब में है, ये सिर्फ अहले सुन्नत के नसीब में है। और याद, मैंने पहले ही कहा था, थोड़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही जलते हैं। और लोग चाहते हैं कि हुस्न वाले का हुस्न खत्म हो जाए, इसीलिए लोग सुन्नियों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। जिस बदअकीदा और जिस बदमज़हब पार्टी को देखिए, वो निशाना अगर बनाती है तो अहले सुन्नत ही के नौजवानों को आप उठा करके देख लीजिए। किसी ने कहावत किसी मौके पर कह दी थी, किसी ने सवाल कर दिया था कि आखिर क्या वजह है कि सुन्नी ही बदअकीदा बनता है, कोई बदअकीदा सुन्नी नहीं बनता है। तो उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में कहा था कि बिरयानी ही गोबर बनती है, कभी गोबर को बिरयानी बनते हुए नहीं देखा गया है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, बिरयानी ही गंदा बनती है मगर गंदगी कभी बिरयानी नहीं बनती है। उन्होंने कहा था, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा शानदार किस्म की बिरयानी की तरह है, तो बिगाड़ इसी में आता है, लेकिन अगर ये अपनी हिफाजत करें, इसको फ्रिज में हिफाजत से रखें, तो न जाने कब तक ये बिरयानी चलती रहेगी। उसकी हिफाजत करेंगे, वो सड़ेगी नहीं, महफूज रहेगी। इसी तरीके से अगर आप अपने ईमान की हिफाजत करेंगे तो आप बदअकीदा नहीं होंगे। अब उस अकीदे की हिफाजत कैसे होगी? तो जिस तरह से बिरयानी की हिफाजत के लिए फ्रिज को बनाया गया है, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए एक अजीम किला है, उस किले का नाम मसलके आला हजरत है। जो इस किले में रहेगा इंशाअल्लाह उसके ईमान की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप में से हर एक शख्स तो आलिम नहीं बन सकता है। अगर सब आलिम बन जाएंगे तब मसला गड़बड़ हो जाएगा। तब इतना बड़ा स्टेज नहीं, उतना बड़ा स्टेज लगाना पड़ेगा। जैसे उलमा सब यहाँ बैठे हैं तो आप लोग भी तो कहेंगे हम भी तो उलमा हैं, तो फिर स्टेज ही रहेगा, पिंडाल रहेगा ही नहीं, कुर्सी रहेगी ही नहीं। शरान भी हर एक शख्स का आलिम बनना फर्ज नहीं है, हर एक का आलिम बनना फर्ज नहीं है। शरान भी ये चीज़ है। इमाम बैज़ावी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर हर शख्स का आलिम बनना फर्ज हो जाए तो इससे ऐसा फसाद बर्पा होगा कि निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। काश्तकारी कौन करेगा? कौन बीज बोएगा? कौन हल चलाएगा? कौन कपड़ा बनाएगा? कौन कपड़ा सिलेगा? कौन माइक सही करेगा? कौन मैक तैयार करेगा? कौन पिंडाल तैयार करेगा? अगर सब आलिम बन जाएंगे तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में उलुल अम्र हो। उलुल अम्र का मतलब यह है कि जो तुम में सच्चे उलमा हो,
उनकी इताअत करो, उनके पीछे चलो। सबको आलिम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सच्चा आलिम बन जाए सबको लाजिम है उसी के पीछे चले। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये मेरे मुस्तफा की हदीस कहती है, मेरे मुस्तफा का फरमान है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो जिस तरह से नबी के पीछे चलना लाजिम है, ऐसे ही उनके वारिसीन के पीछे भी चलना लाजिम है। और उनकी इक्तिदा जब करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से जन्नत की बहारें आपका इस्तेमाल करती है। और याद रखिए, आलिम की जैसे यहां जरूरत है, यहां से जाने के बाद जन्नत में भी जरूरत रहेगी। दुनिया में भी लोग आलिम के मुहताज बनाए गए हैं, और आखिरत में जन्नत के अंदर भी लोग आलिम के मुहताज बनाए गए हैं। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, बात पूरी करके आपसे रुखसत हो जाता हूं। जब जन्नती जन्नत दुनिया में कैसे मुहताज हैं, अगर उस पर तफसीली गुफ्तगू करूं तो सुबह हो जाएगी, मगर जब कोई मसला फंसता है तो मुफ्ती साहब जरा ये मसला बता दीजिए, तो जरूरत पड़ती है कि नहीं आलिम की। ना आपका ईमान बगैर आलिम के महफूज रहेगा, ना आपकी बीवी बगैर आलिम के महफूज रहेगी। एक साहब ने प्रधानी का इलेक्शन जीत लिया, और उसमें जितनी मुखालफत होती है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मुखालिफ पार्टी ढूंढती रही कि कोई नक्स मिले, कोई पॉइंट मिले तो हम इनको परेशान करें। उसको एक पॉइंट मिल गया, इत्तेफाक से उसी घर में राशन कोटा भी था, उसी घर में प्रधानी भी आ गई। मुखालिफिन ने ले जाकर के दरख्वास्त दे दिया कि एक ही घर में राशन कोटा, उसी में प्रधानी दोनों है। जांच शुरू हो गई। जो नए नए प्रधान हुए थे उन्होंने जाके वकील से पूछा, क्या बताया जाए, क्या जवाब दिया जाए। हमारी बीवी के नाम प्रधानी है और राशन कोटा भी उसी के नाम, अब कैसे क्या किया जाए। वकील साहब ने कहा कि जिस डेट में इलेक्शन हुआ है उसके 6 महीने पहले का एक हलफिया बयान, जिसको आप लोग अपनी जबान में एफिडेविट कहते हैं, बनवा लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि मैंने फलां बिनते फलां को तलाक दिया। तो 6 महीना पहले इलेक्शन से जब आप दिखा देंगे कि मैंने उसको छोड़ दिया है, वो मेरी बीवी है ही नहीं, तो गोया दोनों अलग अलग हो गए। अब प्रधानी भी बचेगी रहेगी और राशन कोटा भी उसी घर में बचा रहेगा। प्रधान साहब ने खुश होकर के वकील साहब के कोई वकील साहब होंगे तो माजरत चाहता हूँ, ऐसा ही मशवरा दे करके लोग न जाने कैसे कैसे लोगों को कहा कर देते हैं। चुनांचे उन्होंने बनवाया हल्फिया बयान और उसे रख लिया। शुदा ये खबर जब मुखालिफिन तक पहुंची तो उनको एक और मसाला मिल गया और उन्होंने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि प्रधान जी ने दूसरा गजब ये किया कि तलाक दे करके भी बीवी को रखे हुए हैं, तलाक दे करके बीवी को रखे हुए हैं। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। अब लोगों ने इसको उछालना शुरू किया। प्रधान जी के कान खड़े हुए और फिर पहुंचे मौलाना साहब के पास। हजरत क्या वाकई तलाक पड़ जाएगी? चंद उलमा उस गांव में थे, वो बैठे मीटिंग में कि अब क्या होना चाहिए। किसी साहब ने कह दिया अख्तर हुसैन कादरी को फोन करो। इत्तेफाक से जुमे मुबारका का दिन था, जुमा से पहले मेरे पास फोन आया, हजरत एक मसला है, यहाँ पर उलमा बैठे हैं, मीटिंग चल रही है। हमने कहा क्या मसला है? उन्होंने पूरी तफसील बता करके मुझसे पूछा कि बीवी पर तलाक हुई कि नहीं हुई। असल मसला ये है, उलमा बैठे हैं, ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने हदीस पाक की रोशनी में उनको मसला बताने के बाद कहा कि उस प्रधान से जाकर के कह दीजिए कि पूरे मोहल्ले में डुगडुगी बजा दे कि राशन कोटा भी बचा हुआ है, प्रधानी भी बची हुई है, मगर बीवी नहीं बची, बीवी चली गई है। प्रधानी भी बची, राशन कोटा भी बचा, मगर बीवी नहीं बची है। इसलिए कि तलाक चाहे आदमी खुशी में दे, चाहे गुस्से में दे, चाहे मजाक में दे, तलाक पड़ ही जाती है। और याद रखिएगा 3 तलाक एक मर्तबा न दीजिएगा, वरना वजीर आजम की तरफ से बहुत सख्त कानून है, दिमाग सही हो जाएगा, इससे बचिएगा। तो अब अगर कोई मजाक में तलाक दे तब भी तलाक पड़ जाएगी, फर्जी तलाकनामा बनवाए तब भी तलाक पड़ जाएगी। मैंने कहा प्रधानी भी बची है, राशन कोटा भी बचा, मगर बीवी नहीं बची। जाकर के कह दीजिए
अब अगर उनके पास इल्म होता कि इस सूरत में भी तलाक पड़ जाती है तो बताइए बीवी को बचा लेते कि नहीं बचा लेते, मगर चूंकि इल्म नहीं था तो बीवी नहीं बचा सके। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इल्म नहीं रहेगा तो ईमान भी नहीं बचा पाएंगे और बीवी। जब जन्नत में जाएंगे तो वहां क्या जरूरत पड़ेगी, उसको जरा सुन लीजिए, बात खत्म हो जाए। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और दुआ कीजिए जैसे यहाँ सब लोग हैं वहां भी रहें, मुफ्ती वफाउल मुस्तफा साहब रहे, ये उलमा रहे, और ये वहां अगर ना सुनाना चाहे तो नहीं रहेंगे। कुरान कहता वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए जन्नत में वो सारी चीजें होंगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा। तो अगर दिल चाहे कि स्टेज लगा हो, इस जगह का क्या नाम है, भूमा, बहुत अजीब नाम है। चलिए खैर, भूमा, अगर वहां भी आपका दिल चाहे सरजमीने भूमा हो, अगल बगल के लोग हों, पिंडाल सजा हो, उलमाए भूमा बैठे हुए हों, इलाके के उलमा स्टेज पर हों और इकबाल साहब नाच सुनाएं, अभी दिल में ये बात आएगी, स्टेज तन से सामने नजर आ जाएगी। वहां कुछ करना नहीं है कि बुलाओ टेंट वाले को, बुलाओ माइक वाले को, अभी दिल में ख्याल आया कि सारी चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक वहां पर इकट्ठा हो जाएगी और फिर ये नाच भी सुनाने लगेंगे, आप सुन करके वाह वाह भी करने लगेंगे। लेकिन जिस तरह से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इतनी आसानी से ये सब नहीं होगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उस बहुत कुछ करने के लिए आला हजरत ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, सबसे सस्ता सौदा और सबसे बेहतरीन माल। लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास शायद दिमाग कम है, इसीलिए ये कोई प्लान नहीं कर पाते हैं। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। हाँ, अंग्रेज को लोग कहते हैं बहुत माइंडेड होते हैं, ये 100 साल आगे का प्लान लेकर के चलते हैं। तुम 100 साल की बात करते हो, 200 साल की बात करते हो, जो 200 साल पहले आने वाले वक्त का प्लान लेकर के चले तुम उसको दानिश्वर और अक्लमंद कहते हो। मुसलमान 200 और 300 साल आगे का प्लान लेकर के नहीं, बल्कि हमेशगी का प्लान लेकर के चलते हैं। ये जन्नत का वो प्लान है कि जिसमें ला यबला, कभी पुरानापन आएगा ही नहीं, वो हमेशगी की नेमतों का प्लान लेकर के चलते हैं। जन्नत वो चीज है जिसको कभी फना नहीं है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो हमेशा उसमें रहेंगे। इनका प्लान 100-200 साल का प्लान नहीं, इनका प्लान हमेशा का प्लान है। वो प्लान है जन्नत का, और ये जन्नत का प्लान मिलेगा कैसे? मुस्तफा की सच्ची गुलामी की बरकत। जन्नत में चले गए, चलिए अल्लाह करे हम सब लोग वहां साथ रहें। मेरे गरीब खाने पर खानवादे रज़विया और खानवादे अमजदिया के बहुत बुजुर्गों ने करम फरमाई की है, जलवा फरमा हुए। मेरे गुरबत कदी पर हुजूर ताज शरिया जैसी शख्सियत जलवागर हुई। हुजूर मुहद्दिसिन कबीर का पारहा आना हुआ, जलवागर हुए। मेरी वालिदा मालिदा के चेहरे के मौके पर हजरत नशीब फरमा हुई। जुमे मुबारक का दिन था, पूरे इलाके में ईद का माहौल हो गया। ये शख्सियत ऐसी है कि जहाँ जाए बाबा बाहर आ जाए। हुजूर मुहद्दिसिन कबीर किताब फरमाते और दौरान किताब आपने फरमाया, खुदा की कसम, ऐसे ही फरमाया, खुदा की कसम मैं तुम सब लोगों को जन्नत में लेकर के चलूंगा, बस शर्त यह है कि तुम सब मसलक के आला हजरत पर सख्ती से कायम रह जाओ। ये वो मसलक है कि जो तुम्हें जन्नत में लेकर के जाने की जमानत देता है। जन्नत में चलेगा, सब कुछ वहां पर मिलेगा। अब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, और क्या चाहिए ये बताओ। सुभान अल्लाह, अहकमुल हाकिमीन ऐलान करेगा, और क्या चाहिए। अगर आपके सूबे का वजीर आला ऐलान कर दे, इस गांव के लोग बताएं क्या जरूरत है, क्या चाहिए, तो पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटेंगे इस गांव के लोग। वजीर आला ने जल्दी ले लो, बस बढ़ा जाए, बढ़ाते नहीं, तुमको बताओ
तुम लोगों को किस चीज की जरूरत है? खुशी से भूले नहीं समाएंगे। वहां तो रब्बी कदीर ऐलान फरमाएगा, अरहमुर रहीम की तरफ से ऐलान होगा। और क्या चाहते हो तुम? और क्या चाहते हो? जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए ऐलान होगा। जब खुदा की तरफ से ये ऐलान होगा, और क्या चाहिए? और तुमको किस चीज की जरूरत है? क्या तुम चाहते हो? तुम्हारी तमन्ना क्या है? सब लोग मारे खुशी के भूल जाएंगे कि खुदा से क्या मांगे। सारी चीजें तो मौजूद हैं। मकान शानदार जन्नत के अंदर, सोने चांदी जवाहरात से मुज़य्यन। मांगे तो क्या मांगे? उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या मांगे। अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिल में बात डालेगा कि अपने उलमा से जाकर पूछो, जाओ अपने उलमा से पूछो, वो तुमको बताएंगे कि खुदा से क्या मांगना चाहिए। उनके दिल में ये बात आएगी, आप सबके भी दिल में आएगी। दुआ करें कि यहाँ भी इकट्ठा रहे, जन्नत में भी सब इकट्ठा रहे, और सुन्नी इंशाअल्लाह सब इकट्ठा जन्नत में रहेंगे। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमारे इमाम अख्तर रज़ा, हमारे इमाम अहमद रज़ा, हमारे इमाम ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे इमाम गौसे आज़म, हमारे इमाम आज़म और पूरी कायनात के इमाम रसूल आज़म हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तो इंशाअल्लाह सब एक साथ रहेंगे। रसूली के दामन में रहे, और जो उनके दामन में रहे हज़रत हसन बरेलवी ने खुशखबरी दी है, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे कयामत में अगर मान गया। हर दस्तरखान पे मुँह मत मारिएगा। जो हर दस्तरखान पे मुँह मारता है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इधर भी जाए उधर भी जाए, इसको भी अच्छा कहे उसको भी अच्छा कहे। रसूल पाक ने जलाल की कैफियत में फरमाया, ऐसा आदमी उस बकरी की तरह से है कि जो कभी इस अंडू के पास जाए कभी उस अंडू के पास जाए। ऐसा सख्त जुमला रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है। आज कुछ लोग कहते हैं अरे सब अच्छे, वाह सुभान अल्लाह, जो ये जुमला कहे समझ जाओ कि सबसे बुरा यही है। इससे बुरा कोई नहीं हो सकता है। जो हलवा और गोबर को एक करे वो कभी अक्लमंद नहीं हो सकता है, वो बेवकूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें अक्ल दी है तो हम समझते हैं गोबर की हैसियत अलग है, हलवे की हैसियत अलग है। जो गोबर और हलवा को एक कहे वो अपने आप को कितना ही अक्लमंद क्यों कहे, हम उसको जाहिल से भी बदते। इसको याद रखिएगा। जन्नत में चलिए जल्दी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 घंटे 1 घंटे से ज्यादा आपसे गुफ्तगू हो गई। बस आखिरी बात यह है जो मैं सुना रहा हूं। अब जन्नती देखेंगे अगल बगल में कौन है। तो जैसे यहां हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मजमा है, क्या मैं सबको सुबह पहचान लूंगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैदान महशर में बिल्कुल मामला कुछ और ही होगा। एक आलिम हर उस शख्स को पहचानेगा जिसने उस आलिम की किसी भी तरह से कद्र की हो, किसी भी तरीके से उसका ताउन किया हो, उसकी कद्र की हो, सबको पहचान लेगा। हदीसें इस पर मौजूद हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा वरना बात लंबी हो जाएगी। जन्नती जन्नत में होंगे, खुदा की तरफ से ऐलान होगा। और क्या चाहे, और किस चीज की तमन्ना है? जन्नतियों की समझ में बात नहीं आएगी कि खुदा से अब क्या मांगे। अल्लाह इनके दिल में डालेगा कि जाओ अपने उलमा से मशवरा ले लो, अपने उलमा से पूछ लो क्या चाहिए, खुदा से क्या मांगे। चुनांचे फौरन ये अपने उलमा के पास जाएंगे। जन्नती जन्नत में उलमा के पास जाएंगे और उनसे जाकर के कहेंगे खुदा का ऐलान आपने सुन लिया है,
खुदा का फरमान है, खुदा का ऐलान है। तुम्हें और क्या चाहिए? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि हम खुदा से और क्या मांगे। सब तो मौजूद है, आला किस्म का लिबास है, बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा है, शानदार किस्म की इमारत है, सब कुछ मौजूद है। क्या मांगे? हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। खुदा से किस चीज की तमन्ना करें, खुदा से क्या मांगे? हमको बताइए जल्दी से। खुदा का ऐलान है, और क्या चाहिए? तो बताइए खुदा से क्या मांगे। आलिम उस मौके पर आपकी वहां रहनुमाई करेगा, आलिम वहां पे आपकी रहनुमाई करेगा और आलिम मशवरा देगा। अरे क्या मांगते हो? समझ में बात नहीं आ रही है? हाँ, समझ में बात नहीं आ रही है। क्या कह दे खुदा से कि ये चाहिए? आलिम फरमाएंगे, जाओ खुदा की बारगाह में अर्ज करो, खुदा तूने सब दे दिया, कोई चीज हमें और नहीं चाहिए। मौला बस एक चीज की अब जरूरत है, एक चीज हमें और चाहिए। जब अल्लाह फरमाए क्या, जाओ कह देना, मौला अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। तो रब्बे कदीर जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। ये रहनुमाई जन्नत में कौन करेगा? न कोई डॉक्टर करेगा, न कोई इंजीनियर करेगा, न कोई प्रोफेसर करेगा, न कोई लॉयर करेगा, न कोई दौलतमंद करेगा। वहां भी ये रहनुमाई अगर कोई करेगा तो सच्चे उलमाए दीन आपकी रहनुमाई करेगा। इसलिए इनकी कद्र कीजिए और इल्म दीन से अपने घर को मुज़य्यर रखिए। इंशाअल्लाह रहमतें आपके घरों पर सावन भादों की तरह बरसती नजर आएंगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।